Hello everyone, welcome to Early Board. My name is Varsha Diman, and this is a very important session for all those aspirants who are thinking of targeting NABARD grade A examination in the year 2026. Right? तो अभी हमारा फेज वन हुआ था 2025 के लिए ऑन 20th of December 2025 और अभी 25th of January 2026 में फेज टू राइट फॉर द NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन बट स्टिल काफी सारे एस्पिरेंट्स के डाउट्स आने लगे हैं रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर द ईयर regarding the preparation for the year 2026 कि मैम NABARD की preparation हम कैसे करें and what are the different things that we should keep in our mind. इस particular video में I am going to tell you about the NABARD grade A examination like कौन है जो इसके लिए eligible है like what should be your educational background, your age and क्या वो important factors हैं that you should be aware of about this particular examination, right? So let's start this particular video aspirants. So here we go. सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है and you had scored at least 60% marks in your graduation. That means you are eligible for applying for NABARD grade A 2026. Okay. साथ में your age should be in the range of 21 years to 30 years. And if you had done your post graduation तो doesn't like ये एक आपके लिए desirable ही रहेगा factor, ठीक है. तो इट कैन ऑल्सो बी लाइक अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट. उसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टू डू आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एज असिस्टेंट मैनेजर. जो आपकी प्रोफाइल होगी दैट विल बी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एंड दैट विल बी ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर. तो ये हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क अक्रॉस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स. साथ में यू विल बी द पार्ट ऑफ द टीम which is working in the implementation and monitoring of various government schemes. Because NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development. So जो भी different schemes है related with the agriculture and rural development, you will become the part of the team. ताकि on schemes के implementation and monitoring में you will work directly. साथ साथ में you will deal with central and state government policy related to agriculture and rural development issues. Okay, so these are the roles and responsibilities will be given to you directly or indirectly. उसके अलावा the exam pattern is not similar to other banking exams and SSC exams. Exam pattern थोड़ा different है. Okay, I'll tell you about the exam pattern in detail in the next slide. यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं. If I talk about the perks, ठीक है, you will get HRA, you will get the medical insurance, travel allowances, leave policy will be there, and pension scheme also. Okay, so these are the important perks. उसके अलावा सैलरी की अगर हम बात करें तो होल सोल आफ्टर including all these HRA, DRA, DATA and other things, you will get on an average initially 1,08,000 around, ठीक है, in the per month, and after that increments will be added on regular basis, ठीक है. So this is about the salary and the allowances. Now if we look at this, यहाँ पे भी आप देख सकते हो. Okay, this is about all the important roles that you have to play as an assistant manager grade A in NABARD. These are the perks that will be provided to you and that's all about the salary. Okay, or I'll take some specific sessions where I'll give you all the related details in a very like detailed manner. ठीक है, जिसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप जब एज अ NABARD ग्रेड ए ऑफिसर पोस्टेड होगे तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही पोस्टेड होगे. साथ में यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि आप पर्सनली भी ग्रो कर सको और प्रोफेशनली भी. लाइक इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज. और साथ में यू आर वर्किंग विद द ग्रेड बी ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स, सो यू विल ऑलवेज फील एन एनहांसमेंट इन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस बिकॉज यू आर वर्किंग विद द गैजेटेड ऑफिसर्स. ठीक है, अब हम बात करें नाउ लेट्स कम एंड लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न. ठीक है, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है देयर विल बी 3 phases अगर हम इन टोटल बात करें, ऑल्दो देयर विल बी अ साइकोमेट्रिक टेस्ट आल्सो आफ्टर योर फेज 2.
लेकिन अगर हम इन टोटल और इन जनरल बात करें तो आपके 3 phases हैं. Phase 1 is having 2 sections in it. I'll tell you in detail, don't worry. उसके अलावा phase 2 में यहाँ पे आप देख रहे हो जर्नलिस्ट ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स. तो एस्पिरेंट जो नबार्ड की नोटिफिकेशन आउट होती है उसमें कुछ जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो जनरल स्ट्रीम के लिए स्पेसिफाइड होती है. उसके अलावा आपकी कुछ वैकेंसीज होती है एज अ फिशरीज में, फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, सीए में, अकाउंटेंसी में. तो अगर आपका ग्रेजुएशन स्पेशलाइज्ड है इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट में, यू कैन अप्लाई अंडर द स्पेशलिस्ट कैटेगरीज ऑल्सो. ठीक है. ऑल्दो अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में तो जनरल स्ट्रीम में कंपैरेटिवली हाई नंबर ऑफ पोस्ट होती हैं और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स में कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ पोस्ट होती है. और वहीं पे आपका जो फेज 1 का एग्जाम, फेज 2 का एग्जाम पैटर्न है वो भी वेरी हो जाता है. ठीक है. वो भी चेंज हो जाता है. जनरल स्ट्रीम के लिए अलग रहता है और स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम के लिए अलग रहता है. Okay? And then you have to face the interview after qualifying or after scoring well in your phase 2 examination. If I talk about the phase 1 examination, so phase 1 examination may, if I talk about these 5 subjects, first 5 subjects, they comes under the category of qualifying section. Okay. And these 3 subjects comes under the category of merit section. ये merit section के अंदर आते हैं. यानी कि if you are scoring well in your merit section, तो आप further phase 2 के लिए रेडी रहोगे. अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू विल नॉट बी लाइक आप फर्दर नहीं कंटिन्यू करो. ठीक है. तो अगर हम बात करें इन योर क्वालिफाइंग सेक्शन जिसमें आपको सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करनी है, द मेरिट सेक्शन यू हैव टू स्कोर वेल ताकि आपको जो ओवरऑल स्कोर हो वो बढ़िया बने. ठीक है. सो अंडर द क्वालिफाइंग सेक्शन देयर विल बी द टेस्ट फॉर योर रीजनिंग, फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज, फॉर योर कंप्यूटर नॉलेज सब्जेक्ट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग. तो दीज आर द 5 सब्जेक्ट्स और ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर. सिमिलरली जो मेरिट सेक्शन है ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर. ठीक है. अंडर दिस यू कैन सी 20 questions of reasoning, 30 questions of English language, 20 questions of computer knowledge, 20 questions of quantitative aptitude, 10 questions of decision making. Okay. And you can see the marks also और total composite time will be given to you. ऐसा नहीं है कि हर एक section के लिए अलग से time है. No. Composite time of 2 hours will be given to you to cover all these 8 sections. And there will be a negative marking of 1/4. In total आपको 200 questions face करने हैं. 100 questions of qualifying sections and 100 questions of merit section. Under the merit section जो आपके important subjects है they are general awareness, economic and social issues and agriculture and rural development portion. इसका syllabus, indicative syllabus is given to you on the official website और वही topics पे आपको mainly focus करना होता है for your phase 1 plus phase 2 preparation के. So in this manner we can say that कि हम phase 1 and phase 2 की preparation एक साथ कर सकते हैं. The reason being जो ये हमारे qualifying section के subjects हैं यही आपसे phase 2 में भी कवर कराए जाएंगे बट वहां पे जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा दैट विल वेरी. यहाँ पे तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. In the phase 2 you will have to face the objective paper as well as a descriptive paper. ठीक है. Now moving ahead you can see यहाँ पे आप देख सकते हो this is about your phase 2. So when you will be able to cross the cut off, ठीक है, जो आपके क्वालिफाइंग सेक्शन का कट ऑफ क्रॉस कर लिया, मेरिट सेक्शन में कट ऑफ क्रॉस प्लस अच्छा स्कोर आपने कर लिया, आफ्टर दैट यू विल बी कॉल्ड फॉर द फेज 2. ठीक है. और फेज 2 में आपसे 2 पेपर्स आपके होंगे. वन विल बी द पेपर 1 ऑफ जनरल इंग्लिश एंड पेपर 2 विल बी ऑफ ESI and ARD. ESI and ARD का descriptive paper will be there and objective paper will. General English may be online descriptive paper will be there. 3 questions will be asked to you. 100 marks का paper होगा. 1.5 hours का time will be given to you to type your descriptive answers for the 3 questions from the English portion that were asked to you. वहीं पर paper 2 में that is objective paper and descriptive paper. Objective paper में 30 questions रहेंगे. 10 questions of 1 marks each and 20 questions of 2 marks each.
Some questions will be passage based, थोड़े से tricky रहेंगे, and they will be from your ESI portion plus ARD portion both. ठीक है, और 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. 30 minutes time will be given to cover your objective paper, and after that you have to face your descriptive paper. Under the descriptive paper 6 questions will be given to you, और ये जो 6 questions है इनमें से you have to attempt the 4 questions, and from these 4 questions one 10 marks question will be compulsory and one 10 marks question will be compulsory, और rest of the 2 questions will have the choices. ठीक है, तो उनमें से आपको चूज करके आप अपने जिस क्वेश्चन को आप ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे. 1.5 hour time will be given to you and this paper will also constitute of 50 marks. और यहाँ पे for 15 marks question you have to frame your answer for 600 words, and for 10 marks question you have to frame your answer for 400 words. ठीक है, और इसमें आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आप इंग्लिश में ऑप्ट करना चाहते हो या फिर हिंदी में ऑप्ट करना चाहते हो, एज पर योर प्रिपरेशंस, एज पर योर सिलेबस और एज पर योर ग्रेजुएशंस आप चूज कर सकते हो. दिस इज अ इंटरनल चॉइस गिवन टू यू. ठीक है, ये आपको फिल करना है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग कि आप इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करना चाहते हो या फिर हिंदी मीडियम ऑप्ट करना चाहते हो फॉर कंप्लीटिंग द क्वेश्चंस ऑफ योर ARD एंड ESI पोर्शन. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. देखो मैं बहुत डेप्थ में ये सब चीजें आपको इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज द क्वेश्चंस, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. ठीक है, जो 2026 में इस एग्जाम को टारगेट करने का सोच रहे हैं, वट एवर द क्वेश्चंस यू आर हैविंग इन योर माइंड आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दें, so that I'll discuss related to the questions in our upcoming sessions as well. ठीक है, now moving ahead, let's talk about the syllabus. तो ये indicative syllabus है. I am mentioning here the indicative syllabus of all these subjects. यानी कि ये portions तो हमें करने ही हैं अच्छे से. ठीक है, so you can see that you will face the questions related to reasoning ability में puzzles and seating arrangements, CELOP, data sufficiency, statement based questions, verbal reasoning, inequality, miscellaneous questions, input output, blood relations, coding, decoding. ठीक है, तो रीजनिंग एबिलिटी से these questions you have to face. Quantitative aptitude portion से questions based on data interpretations, quantitative equations, number series, simplification, approximation, data sufficiency, arithmetic questions, quantity comparisons, mathematical inequalities. From the English language portion, you have to face the questions like reading comprehensions, close test, sentence improvement, spotting the errors, fill in the blanks, sentence rearrangements, parasymbols, new pattern questions. From the general awareness portion, तो ये general awareness portion हमारे qualifying section का है ना, तो इसमें आपको last 6 to 8 months के जो current affairs हैं related to the banking, economy and insurance, okay, as well as जो recent appointments हुए हैं, sports, awards, honors, new schemes, international and national news, latest science and technological developments, ये सब आपको cover करना है अच्छे से. ठीक है, and decision making में there are different methods जो हम decision making के लिए use करते हैं. You need to be aware of the different methods of decision making, different models of decision making. ये different models आपको पता होने चाहिए. Errors that can occur in decision making. तो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, रिकॉग्नाइजिंग द अजम्पशंस की कौन सा डिसीजन मेकिंग मॉडल यहाँ पे यूज हुआ है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर. डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड टू कवर दिस पर्टिकुलर पोर्शन इन डेप्थ. उसके अलावा फॉर द कंप्यूटर नॉलेज यू हैव टू कवर द पोर्शंस लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, networking, DBMS, MS Office, Internet, history of computers and generations and shortcuts. तो ये तो हो गया हमारे फेज 1 के पोर्शंस का सिलेबस. अब आप बोलोगे कि मैम ESI and ARD का सिलेबस, so it is not mentioned here. So aspirants ESI and ARD जो पोर्शन है that is included in your phase 1 and phase 2 both, और दोनों में सिलेबस सेम है. कहाँ पे डिफरेंस आता है कि फेज 1 के जो क्वेश्चन रहेंगे दे विल बी ऑफ द लेवल इजी टू मॉडरेट.
और वहीं पर जो फेज 2 के क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पेसिफिकली, उनका जो लेवल रहेगा दैट विल बी मॉडरेट टू टफ, और आपके थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे प्लस पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे टू गेट टू नो अबाउट द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, कि आपको टॉपिक के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट the phase 1 examination. Now we are moving on the phase 2. Okay, if we talk about the phase 2 things, so here you can see, आपके फेज 2 में देयर विल बी द इंग्लिश पेपर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, और फेज 2 का पेपर 2 रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव of ESI and ARD portion. ठीक है, so paper 1 will include the questions like essay, essay writings, comprehensions, business, office correspondence. That is to access your writing skills, expressions and understanding of the topic. अब कुछ ऐसा इंग्लिश को लेके सिलेबस गिवन नहीं है, सो वी कैन से दैट इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा मायने रखेगा कि करंट में अगर कोई टॉपिक आपके न्यूज में है which are related with your exam, which are related with your syllabus and subjects of general awareness, ESI and ARD portion, you need to cover all those portions here. ठीक है, तो ऐसे इंग्लिश वाले पोर्शंस के लिए इन पे आपको फोकस करना है। whereas when we talk about the paper 2, ठीक है, so when we talk about the paper 2 के लिए the thing that matters, paper 2 NABARD grade A 2025 means paper 2 for general covers ESI, that is economic and social issues, agriculture and rural development with a focus on rural India. इसका मेन फोकस किस पे रहेगा, रूरल इंडिया पे, यानी कि जो आप एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का पोर्शन कर रहे हो, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का पोर्शन कर रहे हो, आपको जो भी पोर्शंस यहाँ पे कवर करने हो उसका मेन फोकस आपके रूरल इंडिया वाले पोर्शन पे रहना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्शंस जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है फ्रॉम योर ESI and ARD से specifically. So let's talk about all these things here. So you can see ESI में we have to focus upon Indian economy and its nature. ठीक है, ये syllabus आपके official website पे official notification का mentioned syllabus है। इन headings को तो आप skip कर ही नहीं सकते हो। Indian economy and its nature, inflation, employment generations and poverty alleviation in India, population trends, agriculture, industry, financial institutions and rural banking in India, economic globalizations, social structure in India, education, social justice pertaining to the various castes and classes, positive discriminations or steps to favor the underprivileged classes. तो ये हो गया हमारा ESI का syllabus, ठीक है? So this is a syllabus that you have to cover for your ESI portion. अब हम बात करें ARD portion के syllabus को लेकर, so under the ARD portion, you need to cover the portions like agriculture, agriculture के basic definitions, soil and water conservation, water resource, agri and farm engineering, horticulture and plantation के ये सारे topics. ये जो यहाँ पे सब मेन हेडिंग्स के अंदर ये जो सब हेडिंग्स और ये कंप्लीट सिलेबस डेप्थ में मेंशन है ना, ये हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, डिटेल में इन द सेंस ये हेडिंग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। डोंट नीड टू गो इन सच ए मैनर कि आप हॉरिजॉन्टल स्टडी इतना कर लो जैसे कि आपको ग्रेजुएशन करना है एक पोर्शन में, नहीं, आपको उतना पढ़ना है जितना एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, एंड दीज पोर्शंस इंक्लूडेड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, agriculture, extension, ecology and climate change, present scenario of agriculture and allied activities in India, rural development. So rural development में concept of rural area, the structure of the Indian rural economy, तो ये topic थोड़ा ज़्यादा नया रह जाता है, और यहीं पे स्पेसिफिकली देखो ये कुछ आपके स्कीम्स भी मेंशन किए गए। अभी जैसे मनरेगा में नाउ वी आर हैविंग दैट VBG रामजी एक्ट, ठीक है, तो जो भी चेंजेस हुए हैं 2026 के जब नोटिफिकेशन के टाइम पे हमारे पास जब न्यू सिलेबस आउट होगा तो आप देखोगे कि
ये थिंग वहां पे चेंज होगी। उसके अलावा आजीविका है, स्वच्छ भारत है, हाउसिंग इन रूरल एरिया है, PURA है, तो ये प्रोग्राम्स और स्कीम्स वी नीड टू कवर फॉर अवर फेज 1 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस के बारे में। नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड डू, आप क्या कर सकते हो। देखो 2026 को आप टारगेट करना चाहते हो तो डोंट थिंक कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसी के बाद आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। एस्पिरेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, 2025 के नोटिफिकेशन से एक आइडिया आप ले लो। शॉर्ट नोटिस आउट हुआ था ऑन लाइक ऑन एन एवरेज 30 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हुआ था 8 नवंबर 2025। लास्ट डेट था फॉर्म फिलिंग की 30 नवंबर 2020। फेज 1 एग्जामिनेशन था 20 दिसंबर 2025 एंड फेज 2 एग्जामिनेशन है 25 जनवरी 2026। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास हार्डली 650 डेज थे कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए फॉर योर फेज 1। और 50 डेज इज नॉट अ सफिशिएंट टाइम, क्योंकि आप देख सकते हो कि ASI एंड ARD का सिलेबस कितना है। ये तो आपके स्टैटिक पोर्शन की बात होगी, प्लस करंट अफेयर वाला पोर्शन भी हमें करना होता है, स्कीम्स भी हमें करनी होती है, अपडेटेड स्कीम्स भी पढ़नी होती है। तो इट इज नॉट easy to cover all the things in the 50 days। ठीक है, ऑल द 50 डेज में आप रिवीजन कर लो उस पोर्शन की जो आपने पढ़ा है इन द लास्ट 6 to 7 months। ठीक है, so if you are thinking of targeting the NABARD grade examination for the year 2026, you have to start from the very beginning। ठीक है, आपको बिना टाइम वेस्ट करे एक प्रॉपर टाइम फ्रेम लेके चलना है कि 6 मंथ में एटलीस्ट आप 2 to 3 टाइम्स अपना सिलेबस रिवाइज कर लो। इस साल नोटिफिकेशन डिले हुआ था, लाइक इन द 2025 नोटिफिकेशन डिले हुआ था, इट डजंट मीन कि हर साल आपका ऐसे नोटिफिकेशन डिले होगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद 2-3 मंथ्स में आपका नेक्स्ट ईयर के लिए नोटिफिकेशन आउट हो जाता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप टाइमली अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें एंड दीज आर द डिफरेंट पोर्शंस जिनको लेकर आप अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी फाउंडेशन जो है ना प्रिपरेशन की वो बड़ी फर्म हो जाएगी। आपके लिए फिर इजी रहेगा आंसर फ्रेमिंग करना, सब्जेक्ट का नॉलेज आपको अच्छा हो जाएगा, आपके रिवीजन 1-2 बार हो जाएंगे तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा क्योंकि आपकी कैलकुलेटिव स्टडी हो चुकी है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, क्या करना है आपको, ए ARD एंड ASI को पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइमली आप उसको कंप्लीट करो। टाइमली आप क्वेंट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, सारे पोर्शंस को आप टाइमली कंप्लीट करके उनके पहले टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ, फिर सेक्शन वाइज टेस्ट लगाओ, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। और जब आपका ये सारा सिलेबस आपको लगेगा कि हाँ अभी वन टाइम हो चुका है, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर डिस्क्रिप्टिव आंसर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में इन द 10 डेज मास्टरी कर सकते हो, नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स यू हैव टू कवर, रिपोर्ट्स यू हैव टू कवर, बजट्स, इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में पढ़ना है, करंट अफेयर्स फॉर योर जनरल अवेयरनेस पोर्शन यू हैव टू कवर। ठीक है, तो हमें बड़ा स्ट्रेटेजिकली सब चीजों को लेके चलना पड़े। अब इस प्रिपरेशन में हाउ वी कैन हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बैच दिखाई दे रहा है, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों की प्रिपरेशंस को लेकर। ठीक है, आई टेल यू अबाउट दिस बैच, बट उससे पहले मैं आपको यूट्यूब के क्लासेस भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो स्टडी मटेरियल मेंशन किया, सजेशन मेंशन किया कि 2025, अभी 2026 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी करंट अफेयर्स की, ऑल्दो जनवरी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसे ही PIB 360 डिग्री एनालिसिस आपके चलते रहेंगे। ठीक है, करंट अफेयर सेशंस विल बी देयर, टॉप 20 MCQ वीकली सेशंस विल बी देयर, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज सेशंस जिनसे आप रेगुलर बेसिस पे अपना प्रिपरेशंस कर सकोगे। उसके अलावा श्योर श्योर सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा डाउट रहता है नोट्स को लेके एंड फर्दर प्रिपरेशंस में क्या चीजें हैं जिनको हमें हैंडल करना है। ठीक है, उन सब चीजों को लेके तो ऑली बोर्ड के एप्लीकेशन में कंप्लीट कोर्स है दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 9th of January, जिसमें आप देख सकते हो you will get all the classes, you will get the test and the notes, community sections is also there।
और जब आप यहाँ से क्लासेस ज्वाइन करना स्टार्ट करोगे, लाइक यू कैन गो फॉर द सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चेक कर लो और वही क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे देखो। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन डू योर रिविजन्स विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ्स। ठीक है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द ARD classes, so yeah, so ARD classes will start from your 9th of January. ठीक है, रेगुलर बेसिस पे you can attend the classes and that's how you can start your sessions with us. And wherever you feel like that you are not getting something, you are having any doubt, you can connect with us in the communities and there we can discuss about your issues related to your preparation. ठीक है, so that's all about. If in case you are having any doubt related to the anything, preparations को लेके, strategies को लेके, planners को लेके, please mention in the comment box so that I'll check and we can discuss related to your. Okay, thank you so much and all the very best.